request all the guests present, principal ma'am and manager sir to please come and light the lamps. पहले कन्या करते हैं, पहले वो कहते हैं ना, आप लोग पूजा में आओ ना प्लीज। बीमारी We are also here. Ma'am? Mami? Come. Thank you everyone. I would request everyone to escort the guests, manager sir, manager sir, and reverend guests on the. Okay. Principal ma'am and Ayujan sir, manager sir, and Prisma ma'am. Everyone please be seated. A very good morning to everyone present over here. Today, the session for which we have gathered here is going to be quite interactive and knowledgeable, as we have esteemed CAs who are the subject experts. We have among us a renowned CA, Mr. Naman Jain. He is one who was a part of a management committee twice and monitored school budget and also is an alumni. He is a self-motivated CA with more than 9 years of professional experience in financial analysis, auditing and key account management. He is a partner with NRPM and Associates, audit manager of Agarwal and Associates, Chandigarh, and proprietor of Naman Jain and Company. He has many feathers added to his cap, which I am sure he will let you know. The second guest among us is distinguished CA, Mr. Ayush Jain. Please clap for him. Who is the founder of Ayush Jain and Associates and is a certified Oracle FCCS consultant and QuickBook Pro advisor. The virtual CA, Ms. Ridhima Jain, is an alumni of this institute from class 12th batch of 2018.
working with the Bank of America, Gurugram, as a financial planning analyst. Mr. Arpit Jain is not present over here, although he was also to come, but I'll just tell about him also. Mr. Arpit Jain, an esteemed CA, had also advanced credentials of being a CA and EISA. He is presently working as Associate Director at Price Waterhouse and has more than 10 years of experience. He advises and sets up transfer policies for MNCs and has written articles on complex tax issues. All these revered subject experts have congregated today to guide you all and satisfy your queries regarding your future endeavors. Now I request Manager Sir, Namajan Sir, and Principal Ma'am to please present a planter as a gesture of appreciation to the distinguished CAs one by one. Please clap. I request Mr. Namajan to please come forward and accept this token. Mr. Ayush Jain, please come forward and accept this token. Now I request Ridhima Jain to please come forward and accept this token. Thank you, Ridhima. Thank you, sir. As these spokespersons have spared their precious time, so let's now derive benefit of their tremendous knowledge. I request Mr. Namajan to please share his views. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Namajan. I am professionally chartered accountant, and I am practicing from last 9 years in this field. I am very happy to here with all of you. And firstly, I thank to School Management Committee who invites me, and especially Mr. Ritesh sir who invites me and gives this great opportunity to tell about your jobs and opportunities in this field. I am very deeply grateful to my parents who always motivate me, encourage me. पापा हमेशा कहते हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस कर दे, कोई बात नहीं, पढ़ता रहे, हो जाएगा, हो जाएगा. तो parents and mother always motivate me, I can do it, you can do it. और after this my school from +1 and +2 from this school, मेरा जो भी स्कूल था नर्सरी टू +2 यहीं तक से था. तो ये मेरे लिए बड़ा एक है कि मेरे जो टीचर्स खड़े हैं मेरे सामने ही, रितु मैम, सुनीला मैडम और मैडम खड़े हैं सभी टीचर्स, तो इन्हीं से ही हम इंस्पायर होके इन्होंने अपना जो हमें टाइम दिया, डिवोटली हमें पढ़ाते थे, तो इनकी बहुत ही हमारे लिए सक्सेसफुल रहता था, हमारी लाइफ बड़ा सक्सेसफुल हुई उसी वजह से. तो मैं थैंक करना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे टीचर्स स्कूल में जिन्होंने हार्ड वर्किंग करी, जितने ब्लेसिंग्स दी सभी बच्चों को, तो जिसका रिजल्ट है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं. आफ्टर +2 सभी के माइंड में होता है भी हम क्या करें, क्योंकि ये क्वेश्चन यही राइज होता है, यार +2 तो हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेज आ गया, क्या करें. तो नेक्स्ट स्टेज के बाद बस यही लगा कि ठीक है, अभी कुछ लगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सभी ने जैसे किया, जैसे दोस्त करते हैं सारे, यार बीकॉम ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही मैंने किया कि अपना बीकॉम ज्वाइन कर लिया और उस ज्वाइनिंग के बाद हम लगे. लेकिन आफ्टर समर वेकेशंस मैं नानी हाउस गया, तो वहाँ पे नाना जी मुझसे क्वेश्चन करते थे, जनरली टॉस करती हैं कि आपका क्या है बाकी नेक्स्ट रोल. तो मैं कहा नाना ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे कुछ सोचे. तो नहीं, कहते आपको सोचना चाहिए, आफ्टर बीकॉम आप क्या करोगे, तो ये आपको लाइफ के बारे में सोचना है. देन गो फॉर मीट सम प्रोफेशनल्स, देन गो फॉर सम काउंसलर्स जो आपको बताएंगे कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो.
तो यही हुआ, मैं उसके बाद उनसे मिला सभी से, उस सब ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे प्रोफेशनल बताया कि प्रोफेशनल्स क्या होता है, प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं, कैसे हमें आगे काम, क्योंकि उस टाइम में हमारे 3 कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो चलते थे, सीए, सीएस और ICWA। उस टाइम में इनकी बहुत डिमांड थी प्रोफेशनल्स की, तो सभी लोग इसी में ही हमें कहते थे कि आप कर सकते हो, बस आपको एक हार्ड वर्क करना है और उसके साथ आप इस फील्ड में ग्रेट रिजल्ट लाओगे आप। तो वो मुझे अच्छा लगा। तो और इसमें एक बेस्ट ये लगा कि सीए इसलिए ज्वाइन करी हमने क्योंकि इसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज थी कि वेदर आर यू इन अब्रॉड, यू आर इन डोमेस्टिक और यू आर इन एनी सिटी, आप यहाँ तक कि अपने किसी डिस्ट्रिक्ट या नेटिव प्लेस में भी काम कर सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगा और मैं यही ज्वाइन कर लेता हूँ मैं सीए कोर्स। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर स्टार्ट होती है। तो वहाँ से मैंने सीए अपना स्टार्ट किया और सबसे पहले इसमें सीपीटी होता था, है ना, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं उसे, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स थे, जिसका 2 का टेस्ट होता था पहले 2 आवर्स में, और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट का पेपर होता था इवनिंग सेशन। तो 1 डे में 4 सब्जेक्ट्स का पेपर था हमारे लिए। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, तो वो हमने उसके बाद उसको क्लियर किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आईपीसीसी की आती है और इसी तरह से ये मेरे दोनों लेवल्स क्लियर हो गए। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई क्लियर्ड विदाउट एनी कोचिंग। तो ये मेरे लिए बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेट रहा कि आप क्लियर कर सकते हो विदाउट कोचिंग, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हो, रेगुलर स्टडीज करते हो, प्रॉपर टाइमिंग देते हो। तो वो मेरा फेस बड़ा अच्छा गया। उसके बाद सबसे ज्यादा जो था ना ट्रेनिंग पीरियड, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है और सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी, यार 3 साल इसमें बिताने पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3 साल कौन बिताएगा ट्रेनिंग में, हमारे बस की बात नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर थ्योरेटिकल। तो वो जो लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज मिली ना हमें कि कैसे आपने क्लाइंट को टैकल करना है, कैसे आपने विजिट करना है, कैसे आपने मैनेज करना है उसके फाइनेंशियल्स को, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज वहां से हमें सीखने को मिली कि हमने काम कैसे करना है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी एक लाइफ की जर्नी थी कि सीए के अंदर ट्रेनिंग सेशन और ये तो होने ही होने चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो आपको लाइफ में बताएंगे आपने काम कैसे करना है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ट्रेनिंग आई गो फॉर सीए एग्जाम्स और उसकी प्रिपरेशन में लगे। अब ये बड़ा टफ टाइम था एग्जाम्स का, सीए फाइनल का। सीए फाइनल आज के टाइम में क्या है कि आजकल सीपीटी टफ कर दिया इन्होंने, लेकिन फाइनल उन्होंने आसान कर दिया। पर हमारे टाइम में क्या था, सीपीटी थोड़ी नॉर्मल थी लेकिन फाइनल बहुत टफ था, क्योंकि फाइनल में आपको 18 आवर्स 16 आवर्स देने ही देने रेगुलर स्टडी के लिए ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सब्जेक्ट्स। इतना सारा पहाड़ होता था वॉल्यूम का। और सभी टीचर्स जो भी हमारे थे सीनियर टीचर्स, वो हमेशा यही कहते थे भाई पूरा कोर्स करके जाना है भाई, अगर पास होना सीए में, नहीं तो आप पास नहीं होगे। तो वो उसमें वाट लगी हुई, 18 घंटे बैठना और एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ना है, पानी धूप पानी, किसी का कोई होश नहीं है आपको, बस आपने करते जाना पढ़ते जाना है। तो उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट है ईच सब्जेक्ट में, क्योंकि 4 पेपर फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में भी आपके 4 पेपर थे। और सबसे था पोस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और अकाउंट्स, एडवांस अकाउंटिंग नहीं एडवांस अकाउंटिंग, तो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट्स थे। तो उसको करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, उसमें बहुत हार्ड वर्किंग रही। तो लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी मेरा क्लियर हो गया उसी वजह से। लेकिन उसमें हमारे टीचर्स थे अकाउंट्स के, प्रवीण शर्मा सर, वो बहुत ही मोटिवेट करते रहते थे हमेशा अपनी कोचिंग्स में, बच्चों 10 साल, बस 10 साल देने आपने अपनी हार्ड वर्किंग के, इसके बाद आपकी लाइफ की जर्नी दी बेस्ट है, बस 10 साल दे दो 10 साल दे दो। तो इतने प्यार से समझाते थे प्रवीण शर्मा सर कि सब उनको इतना फॉलो करते थे कि वो मोटिवेट हो जाते थे वहीं पे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो ये एक बड़ा इंस्पिरेशन रहा। और उसके बाद मेरी डेस्टिनी में लिखा था सीए, तो मैं सीए क्लियर हो गया उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और उसके बाद क्या होता है, एक बिफोर गोइंग टू कन्वोकेशन आपकी एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप होंगे, कैसे आप किससे बात कर सकते हैं, क्या आपके पोस्चर है गेस्चर होने चाहिए। वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी कि उसमें काफी दूर दूर से हमारे पास सीए आए थे, क्योंकि वो उस टाइम में हमारा 40 सीएस का बैच था। एक तो अलग स्टेट से, अलग सिटी से, कोई लखनऊ से, कोई हरियाणा के किसी और एरिया से, कोई पंजाब से। तो वहाँ हमारा एक तरफ से इंटरेक्ट होना अलग अलग बहुत ही डिफरेंट था हमारे लिए। तो हम सब इंटरेक्ट, और आज भी उसमें से हम 2 दिन से लखनऊ तक के हमारे पास दोस्त हैं उस सेशन के लिए। और उसके बाद उसमें एक सर आए थे, उस सर की बहुत अच्छी थी, वो हमेशा कहते थे ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि आप कभी भी किसी से मिले हमेशा स्माइल पास आउट करें, ऑलवेज शेक हैंड्स विद द सम पीपल। जब भी आप मीट करें उससे हाथ मिलाएं, उनसे स्माइलिंग फेस करें,
और उनकी एक बहुत अच्छी थी कि उन्होंने हमें लास्ट में एक ड्राइंग करवाई थी और उस ड्राइंग में करवा के उन्होंने सबके इनिशियल सिग्नेचर्स क्या सब के सब उस पेज की बैक साइड पे जो आपने ड्राइंग करी है बेस्ट जो आप कर सकते हो आप करें और उस ड्राइंग के बेस्ट करने के बाद उसकी बैक साइड पे आप सिग्नेचर्स अपने सबने करके जाएंगे और ये आप अपने कहीं भी जहां भी आप जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे वो एज ए मेमोरी आप रखेंगे हमेशा। तो वो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट था जो सर ने हमें गाइड किया वो बताया हमें। देन आफ्टर उसके बाद अब नेक्स्ट फिर स्टेज होती है कि अब ये तो कन्वोकेशन भी होगी, अब आपके लिए प्राइड फील होगा कि आपने ये काम कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेज अब उसके बाद थी कि यार अब क्या करना है, क्योंकि अब या तो जॉब है या तो प्रैक्टिस है या फिर उसके बाद आपके पास है आपकी कोई अदर डिग्री या अगर कुछ करना चाहते हैं एजुकेशन फेज में जाना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेज होने में से फिर मेरे को लगा कि मेरे को अभी थोड़ा जॉब ज्वाइन करना चाहिए, तो आई ज्वाइन द जॉब। तो जॉब में भी बहुत ही प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट होती है लाइफ जॉब की, क्योंकि वहां पे आपको कॉर्पोरेट सेक्टर अलग से टैकल करना है। ये जो हम थ्योरी लाइफ देखते हैं अपनी जो स्टडीज टाइम होती है वो डिफरेंट होती है, पर प्रैक्टिकल में हमें कॉर्पोरेट लॉ में कैसे काम करना है वो डिफरेंट चलता है। क्योंकि वहां पे हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिट्स थे, मैं वहां पे मैनेजर था एज ऑडिट मैनेजर, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑडिट्स हमें देखने होते थे और गवर्नमेंट ऑडिट्स में प्रेजेंटेशन करना, कैसे जाके आप आईएएस ऑफिसर से मिलना होता था, हमें उसको प्रेजेंट करना होता था सारे डॉक्यूमेंट्स आके वो सबमिट कराने होती थी हमें फाइल अलग से। तो जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के ऑडिट्स थे वो मेरे अंडर थे और वो जाकर सबमिट नहीं करता था इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को। तो ये भी एक बड़ा इंफॉर्मेशन रहा था मेरे लिए, बड़ी दिक्कत चली। लेकिन आफ्टर उसके बाद जीएसटी आ गया 2017 में कि मुझे लगा यार जीएसटी आ गया तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके बैक में कोई हो, या तो आपके फादर जी हो या आपकी पार्टनर ज्वाइन करें या फिर नेटिव आपकी हेल्पिंग में हो, तो आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल या फ्रूटफुल हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है यार अब मेरे को लग रहा है कि जीएसटी आ गया तो मैं इसको ज्वाइन, और मैंने फिर जीएसटी स्टार्ट किया और जीएसटी से वो मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और फिर हमने टैकल किया कैसे हम फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, कैसे बजट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग सेशन आई लर्न दैट इज अ रिस्पांसिबिलिटी टू बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट and there is an analytical thinking process. In practice you have to learn something different, you do some different thing for your clients. How can you help with a different challenging job? तो वो मेरे लिए बड़ा सक्सेसफुल लाइफ था। तो ये मेरी जर्नी थी यहाँ तक कि जो मेरा अभी हुआ है सब कुछ मैंने आपको अभी बताया। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी करियर चूज करें, whatever you choose career in your life, बस don't fear failures in your life. Stay motivated, stay calm and never say let down, never let down, है ना। लाइफ में अक्सर हमें लाइफ हमेशा बैक डाउन करेगी, हमें कहेगी नहीं करना, लेकिन हमें करना है। अगर हम उसको ठान लेंगे तो हम जरूर उसमें सक्सेस होंगे। ठीक है, थैंक यू सर, रियली बहुत आपने अच्छे से गाइड किया है इसको। नाउ आयुष जैन सर, यू प्लीज। Hello. Yeah. Hello everyone. I have been told that 10th, 11th and 12th students are here. And first of all, thank you Principal Ma'am, Manager Sir for bringing me here and giving me this opportunity to share with your kids. So, I'm going to tell you 5 things which I followed dedicatedly in class 10th, 11th and 12th that brought me here. Okay, so during my class 10th, 11th and 12th, I was a naughty kid. I was always at the back end of the seminars, doing all the mischievous things, right? And what changes I did in class 11th that made me more sincere, more responsible, and more career oriented, I'm gonna share that. So, everyone, all excited? Come on! Yes, thank you. So, firstly, I'm gonna share you my 3 classes, 10th, 11th and 12th and 1 line. 10th was really good. I scored 10 CGPA in class 10th. It was the best year in my schooling career. Then came class 11th and class 11th was chaos. I failed miserably in starting first 3 months. I could not adjust, maths, algebra, the new subjects, very difficult for me.
एंड आई होप आप लोगों को भी कहीं ना कहीं 11th में एक जंप मिलता है 10th के बाद कि यार ये तो बहुत टफ हो गई एकदम से चीजें। तो क्लास 11th मेरे लिए भी टफ थी। अगर आप में से कोई वहां पे सोच रहा है यार 11th बहुत डिफिकल्ट है, तो वो है ना, तो हमें डरना नहीं है। अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमें क्या करना है, इम्प्रूव, राइट। तो 11th मेरे लिए भी डिफिकल्ट थी। 12th was all about books. I had a dream कि मुझे DU में ज्वाइन करना है। So क्लास 12 मैंने बहुत डेडिकेटेडली विद डिसिप्लिन, मैंने बहुत फोकस के साथ एक शेड्यूल्ड प्लान के साथ मैंने क्लास 12 परस्यू करी। दो मेरे मार्क्स was a bit little short of my expectations. I scored 94% in class 12. DU में जो college which I was targeting, I couldn't get it. But this is part and parcel of life, right? So what I did in class 10th, 11th and 12th specifically, I'm gonna share you that. First, plan your work and work your plan. What I'm gonna try to say is, आप जब भी 11th and 12th की स्टडीज करते हो, उसमें जो भी शेड्यूल बनाते हो, शेड्यूल बनाने तक की कहानी एक तरफ, उसको एग्जीक्यूट करने का टास्क एक तरफ। तो आप अगर सपोज प्लान अप करते हो कि मैंने आज जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, मैथ्स है, मेरे को आज ये 2 चैप्टर्स करने हैं, तो यू हैव टू, इफ यू हैव प्लान्ड इट देन यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, these habits will help you in longer run. So I am expecting any one of you can tell me what is the meaning of atom. Anyone? It is a science term, but I want you, any one of you, just what is the meaning of an atom? Anyone? An atom is the smallest division out of which every matter is made. Right, is correct. Now, what I'm going to try to say is, there are small habits which we need to inculcate. Small little habits, and the term is called atomic habits. Why the word atom? He explained it perfectly. Atomic habits are those small, tiny little habits which we inculcate, and it gives us result in the longer run. So first, if we are true to our plan, फर्स्ट लाइफ अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि शेड्यूल बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, इफ दिस इज आवर हैबिट इन अ अर्ली स्टेज ऑफ आवर लाइफ, तो ये आपको लॉन्गर रन में बहुत हेल्प आउट करेगी। सो सेकंड एटॉमिक हैबिट व्हिच इन प्रेजेंट डे आई थिंक इट इज वेरी मस्ट, व्हेन यू स्टडी प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स। एवरीवन स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, डू नॉट यूज इंस्टाग्राम बिकॉज़ वी ऑल so much active on it, and then make a habit की 1 hour without phone I study till the end। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लो, and obviously you can do whatever you want in the break, but ये हैबिट बनाओ कि आपको फोन यूज नहीं करने हैं। Third thing which I want to tell you is, there is a concept, everyone, I hope everyone has watched 3 Idiots here, right? Come on, 3 Idiots. So there is a scene in that movie. Everyone will remember I am taking those 2 names: Farhan, nitrate, pre, Raju, lysation. In that scene, what the makers were trying to tell you was, everyone was finding. You remember the scene? Everyone say yes or no? Yes, sir. What everyone was doing, that they were searching those 2 names in the books. But what the maker was trying to say is, before that, had you given yourself a second that you are curious, what is this new thing I'm going to learn today? Please bring your curiosity in your mind, increase your curiosity, and then feed it. You have all the means today in this world. You have got ChatGPT, you have got Google, everything. Every day, make a habit that you learn 2 or 3 new terms. For example, I'm from commerce background, so I'm giving you that example, but you can go anywhere. Like, what is an IPO? What is an IPO? What does it mean?
how it is done, how it is, what is BSc, what is Sensex. Come on, है ना? So these are little things which you need to know. And उसके लिए आपको curiosity होनी चाहिए. Curiosity, आप increase your curiosity and then feed it. So next coming on, मेरे पास बहुत मेरे एक younger sibling भी है. Now she is pursuing BBA. तो उसको भी मैं जो guidance लेती थी during study time, वो कहती थी भैया आप इतनी CA में इतने घंटे कैसे पढ़ लेते हो? Rightly जैसे नमन सर ने कहा कि 16 घंटे 18 घंटे हमें पढ़ना पड़ता था. That is really true. तो मेरी यंगर सिस्टर में से पूछती थी कि भैया आप इतने फोकस्ड और इतने डेडिकेशन के साथ 9 आवर्स कैसे सिटिंग दे सकते हो? To which I replied कि बेटा ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है. 12th का अगर मैं अपना प्लान आउट बताऊं, my 12th was like early morning shift 7 to 10. I used to study accounts 7 to 10. Then I had a break 10 to 12 break करो, खाओ पियो ऐश करो, movies देखो, anything which you want to do. Then next shift was 12 to 2:30. I used to study in those days maths 12 to 12:30. Then again a break of 1.5 hour, and then last shift of 4 to 7. What I used to do was कि जो मेरे को टॉपिक्स मुश्किल लगते थे या जिसमें मेरा कहते हैं ना हाथ तंग है, तो 4 to 7 was my that session. I used to study typical things or revise whatever I did in the morning, and then after 7 I just resolve and rest the end of the day. This was my rough schedule of class 12 at the end of the before the exams at the end of the class 12. So this habit which I had in class 12 helped me CA and CA studies. As sir said, कि CA finals is very difficult. मेरे को भी टैक्स बहुत ही मुश्किल लगता था. It was really difficult to crack that. कि कैसे उसमें मार्क्स आएंगे हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि टैक्स के अंदर theoretically हम कुछ कर रहे हैं, पेपर में कुछ आ रहे हैं. So these small habits, and I'm sure that here both of you are sitting, they also have these habits which brought them here. These are small things which they achieved. And secondly, next, what I want you is these small habits. The next one is, just a second. So next, what all I have done, repeat with me. First, increase your curiosity and feed it. Second, work. Plan your work and, come on guys, work your plan. Third, no phones. No phones while studying. Now fourth habit, which I am a victim of. But I didn't follow it, but I try my best to, see what I have not achieved. Like what is my what I am lacking in, and want to try to share it with you. There is a thing, Mummy, आज भी कल करूँगा. This is my bad habit. Say no to procrastination. Please do the tough thing first, so that it will give you relaxation at the later end. कभी भी किसी भी चीज को टालो मत. हमारी एक हैबिट है, what we do is कि मम्मी आज मेरा मन नहीं, या फॉर एग्जाम्पल ये मैं आज नहीं, मैं कल करूँगा. वो कल कभी आती ही नहीं है, और ये सब जानते हैं. I know everyone of you knows this, but हमारी जो हैबिट है ना, what we resist is we resist the hard part. very मुश्किल है, इसको ना बाद में ना फ्री होके फ्रेश होके करूँगा, वो कभी होता ही नहीं. So what next habit you need to inculcate is say no to procrastination. कल नहीं, मैं आज ही करूँगा या करूँगी. Right? Next. So next I'm gonna tell you about time management, which you all need to learn during in your coming years or during class 11th and 12th. Like sir said, during the articleship time, it is a 3 years articleship period.
which we all CAs have to pass through. So the roughly schedule, my roughly schedule, or maybe there is also, my schedule was 6 to 9:30 morning class of Praveen Sharma sir, as said by Naman sir. Praveen Sharma sir class starts at 6 to 9:30 I get free, and then you have to rush to office. And then you went to office at around 10, and छुट्टी का कोई टाइम नहीं होता गाइस. छुट्टी हम बस वहाँ पे कहते हैं कि सर जाए, अरे नहीं बेटा ये वाला काम ये भी कर जा प्लीज, ये भी कर जा. तो छुट्टी का कोई टाइम होता नहीं है. In normal days, I'm telling you, in normal days, it is around 8 o'clock. 7-8 बजे छुट्टी होती है. और अगर पीक सीजन या जो सीजन वाला टाइम होता है 12-1 तो इट इज नॉर्मल, वहीं पे लंच, वहीं पे ब्रेकफास्ट और वहीं पे डिनर. एंड देन आप घर आते हो, एंड दैट टाइम आई हैड टेकन द सेकंड क्लास. माय सेकंड क्लास जो मेरे को शाम को इवनिंग में लगानी होती थी. तो नॉर्मल डेज 8 o'clock घर आना, 8-8:30 डिनर के बाद 9 to 11:30 12 तक सेकंड क्लास सब्जेक्ट की जो मैंने ऑनलाइन ले रखी थी वो लगानी होती थी. दिस इज व्हाट माय शेड्यूल वाज फॉर 3 years. This is really hectic. But अब ये hectic schedule 3 साल फॉलो करना ये इजी नहीं है. ये फॉलो करने के लिए एक अंदर जील होनी चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए और एक हंगर होना चाहिए. अब हंगर क्या था, नाम के आगे सीखे चाहिए. ये हम सबका हंगर होता है उस देश में, और यही एक जो जील थी इसी से 3 साल हमने क्रॉस की. एंड रिमाइंडिंग ऑफ इट, मेरे एक सर थे आशीष कालरा सर. उन्होंने एक लाइन ड्यूरिंग द कोर्स व्हिच आई टुक फ्रॉम हिम, उन्होंने एक लाइन बताई थी which stayed at the back end of my head. It is a very raw line. I know maybe you are young, but I want you to understand it. सर कहा करते थे कि बेटा you can always share the credit of your success. You can always share the credit of your success, but can you share the credit of your failure? क्या आप कह सकते हो कि यार आपने सपोर्ट नहीं करी इसलिए मेरा सीए नहीं हुआ? क्या वो आपकी इस लाइन पे यस बोलेगा? You can always say यार because of him, because of her, I cleared, they supported me. You can always share the credit of your success, but you cannot share the credit of your failure. Failure is yours. It is yours, 100% yours. तो आपको आगे चलकर कौन सी लाइन में जाना है, अपने करियर के साथ कैसे आगे परस्यू करना है, ये आपके हाथ में. All you need to do is hard work. You are blessed that you have got parents who are giving you this wonderful platform, school, all your basic requirements you are getting, and what they are expecting from you, only one thing, that is hard work. आप hard work करो, you will always succeed. And as said by Naman sir, there is a quote, I am repeating his words only. There is a quote, Japanese proverb, fall 7 times, stand up 8. अगर आपको अपने करियर में कहीं भी सेटबैक मिलता है, it is not the end of the story. वो स्टोरी आपकी ही है, आपको ही उसे आगे बढ़ाना है. अगर आप वहां पानी में बैठ जाओगे वो स्टोरी खत्म हो जाएगी. Fall 7 times, stand up. Come on guys, stand up. So this is what my journey was all about during 10th, 11th and 12th. You will face multiple things in the coming years, and these little things, if these little things are at the back end of your head, maybe you will not, stay there. And I hope that all the young kids here will achieve greater heights, and always take blessings of your teachers, your parents, because they were the nurturing thing. आपको वो nurture जो किया है वो आपके parents और teachers ने ही किया है. I always go back on Diwali to my class
tuition teachers, my class teachers, school friends and everything, and it is a delight. It is a delightful event, and the connection you build, it is always more than anything in this. That's my time, and I hope I have conveyed what I wanted to. Thank you. Very much, Sudhir. And now I would request Ridhima to please say few words. Hello everyone. Why is everyone so dull? थोड़ा जोश बढ़ाओ. Hi everyone. Good morning. National क्या खाना? दोबारा. Let's try again. Good morning everyone. Good morning. Okay. So first of all, thank you management team and principal ma'am आज ये पूरा mentoring session organize करने के लिए, because I think this was not there when I was part of the school, and उससे भी ज़्यादा thank you मुझे हम तीनों को काबिल समझने के लिए कि हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने अपनी पूरी लर्निंग मेरी लर्निंग की पूरी जर्नी इसी स्कूल से शुरू की है. सो आई stepped in this school in class nursery and up till class 12, 14 years. I have learned a lot from this school. And जो मैं आज हूँ, जो मैं आज सब लोगों के सामने खड़ी हूँ, this is the whole thing which I am today. This is because of this lovely institute. So I owe a big thank you to this school. यहाँ के टीचर्स जिनकी constant support and guidance, even आज भी. So I am in touch with some of the teachers. So उनकी guidance and support जिसकी वजह से मैं स्टेज के उस साइड से इस साइड पर आ चुकी हूँ. So thank you. So a very brief introduction about me. So 7 years हो चुके हैं मुझे इस स्कूल से पास आउट हुए. So I am an alumni from 2018 batch, Commerce with Mathematics. I scored 95% marks in class 12 and post clearing my 12th exams. So I entered into Punjab University where I pursued Bachelor's of Commerce. So my specialization was in accounts and finance. So during that graduation tenure, I have appeared for CA Foundation and CA Intermediate exam and I cleared it. So अब BCom अच्छी चल रही थी, BCom के grades भी अच्छे चल रहे थे. So I thought कि ठीक है इसके 6 महीने और रह गए, इसको complete करते हैं, फिर हम CA की अपनी जर्नी आगे और कंटिन्यू करेंगे. So BCom complete होने के बाद I started my articleship journey. So कुछ पार्ट मैंने किया अम्बाला में एक फर्म से, अम्बाला कैंट से. And then the later part, I wanted to explore more, so I went for industrial training, Mitsubishi Electric India, Gurgaon. So 15 months I've spent there. So during that whole articleship journey, I have been evolved so much. CA के course में बहुत कुछ सिखाया, and due to which I was being able to crack my exams in first go. For the CA final exams in May 2024. So presently I am associated with Bank of America and I am a part of financial planning and analysis team. So that was a very brief background about me. Okay. So about the CA thing. How many of you know what CA is? Okay. Chartered accountant, but what a CA do? So Naman sir and Ayush sir has explained, but any inputs are welcome. So don't worry, जब मैं class 12th में थी मुझे भी नहीं पता था. So just give it a try. No one is judging. Somebody who's directly hand, can you stand up? Yeah.
ma'am, on the basis of what I know, I have like met many CAs in my family also. So. Hello. I have met many CAs in my family, and all what I have known from them that they have to like sign on some papers and have to like audit some papers and all. Okay. So बहुत ही बेसिक भाषा में बताती हूँ. आप अकाउंटेंसी करते हो. आपके जो अकाउंट्स है पूरे कंपनी के, मे बी कंपनी में भी एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, प्रोप्राइटर और एनीवन, उसके अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है, दैट इज ऑल्सो व्हाट सीए डज. उसको कैसे बनाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो सीए डज. क्या टैक्स लॉज आप पे अप्लाई होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो व्हाट सीए डज. सो बेसिकली वी कैन से हम डॉक्टर भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि हम चेक करते हैं कि क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही से बने हैं या नहीं, या हम उसके ऑडिटर भी हैं, हम लॉयर भी हैं कि हम ये चेक करते हैं कि ये करेक्ट टैक्स की जो लॉ है या एक्ट है दैट शुड बी एप्लीकेबल टू मी और नॉट. हम इंजीनियर भी हैं क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके से भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाया जा सकता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब एक तरह से बुक्स कि हमारा आज जो हमारा बिजनेस है वो दिख कैसे रहे. सो द होल कॉन्सेप्ट इज समथिंग कि हम पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं. दैट इज व्हाट अ बेसिक सीए डज. उसके आगे बहुत अलग अलग वेरिड लाइन्स है. इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, बट इट हैज अ वेरी वास्ट स्कोप बियॉन्ड दिस ऑल्सो. सो ओके, सो फॉर सीए मेरी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? एज आई सेड, मुझे भी 12th क्लास तक पता नहीं था कि सीए क्या होती है. सो मेरे कजिन है सीए नितिश जैन. ही इज ऑल्सो alumni of this school and he is son of Mrs. Sandhya Jain, who is also teacher with this school for a very long time period. So I got a good inspiration and guidance from my cousin कि सीए देते हैं, चलो इसको एक बार ट्राई करके देते हैं, बिकॉज बीकॉम में तो हम आ गए हैं, बट what I can do which can give me some professionalism, why not give it a try. सीए फाउंडेशन दिया क्योंकि अब बीकॉम में तो आ गए हो, अब एग्जाम्स देते हैं, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. द बेस्ट थिंग जो आयुष सर ने भी कही, ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशंस आई फोकस्ड ऑन वन थिंग कि ये फ़ोन से दूर रहो. फ़ोन को साइड में रख दो, फ़ोन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है जब मैं पढ़ रही हूँ. सो होल ऑफ माई फैमिली नोज कि जब मैं पढ़ रही हूँ मेरा फ़ोन या तो स्विच ऑफ होगा या उन लोगों के पास होगा. फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. अभी आपके 12th क्लास के अभी एग्ज़ाम्स होंगे, 11th के, 10th के, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन से दूर रहें. इट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन. प्लस अगर आपके पास इंस्टाग्राम या यूट्यूब है तो एक बार रील स्क्रॉल करने शुरू करें. आपने सोचा 5 मिनट देखूंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं, बट वो 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है, कब 1 घंटा बन जाता है, यू नेवर नो. सो वो चीज़ ध्यान. ओके, सो गोइंग ओवर फ्रॉम सीए फाउंडेशन वो क्लियर किया, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट. अब सीए इंटरमीडिएट के टाइम पर कोविड था, सो आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग. आई थॉट कि मैं कोचिंग लूँगी, बट I was doing my BCom in a very good manner, so which helped me. So लोग वैसे उल्टा करते हैं, CA को मेन करके BCom को कॉरेस्पॉन्डेंस में निकाल देते हैं. मेरा कॉन्सेप्ट अलग था. मैं BCom को बहुत होल हार्टेडली कर रही थी, जिसकी वजह से which has helped me to crack my CA inter exam, which is the second level of exam. And that too मुझे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, because I was लर्निंग विद दैट पर्सपेक्टिव कि हाँ कि मुझे ये आगे भी यूज होगा. ये चीज़ आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है. जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो मैथ्स का a+b+c का होल स्क्वायर है, दिस विल ऑलवेज बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको यूज होगा. कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरे को कभी यूज ही नहीं होगा. हिस्ट्री है, इट विल ऑलवेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो यूज होगी. जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपका करिकुलम है, दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू
in some or other way. Okay, so CA, अब ये पूरी जो CA की जर्नी है, जब मैं CA कर रही थी या CA की हम एग्जाम्स दिए, आर्टिकलशिप हुई, फाइनल के एग्जाम्स दिए, ये सब कुछ हुआ, तो CA इज नॉट जस्ट एन एग्जाम जो आपको लगता है कि बस आपको ये 3 लेवल्स क्लियर करने हैं, ये छोटे मोटे उसके टेस्ट देने, वैसे छोटे मोटे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट ये एग्जाम देने एंड देन आप CA बन गए। नहीं, इट मेजरली टेस्ट योर पेशेंस, योर कॉन्फिडेंस एंड द थर्ड योर डिसिप्लिन। आप कितने अनुशासन में हो, आर यू स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ कि अगर मैंने बोला है कि मैं सुबह 4 बजे से 5 बजे तक साइंस पढ़ूंगी और इतना टाइम मेरा साइंस के लिए डेडिकेटेड है और मैं 4 से 5 के बीच में सोऊंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी, तो क्या मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन रख रही हूँ कि मैं वो 4 से 5 में पक्का पढ़ ही रही हूँ? मैं फोन तो नहीं चला रही, या मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आगे आधा घंटा बाद में कर लूंगी। कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन। सेकेंड थिंग, पेशेंस। CA इज अ थिंग, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं, बहुत कम पास परसेंटेज है, आप क्लियर कर सकते हो या नहीं, जरूर लोग तो ये कहते हैं कि इसमें एंटर कर जाओ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पक्का बाहर निकल पाओगे या नहीं। तो आपको पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। तो जब मैं एग्जाम्स दे रही थी, सो देयर आर टाइम्स आपको लगते हैं, मैं तो जितने भी मॉक टेस्ट पेपर, मुझे शौक है मॉक टेस्ट पेपर्स करने का, बहुत सारे बिफोर हैंड, तैयारी वैसे चेक होती है। सो मॉक टेस्ट एग्जाम्स में आई फेल्ड मिजरेबली, सो आई हैव नेवर फेल्ड इन माई लाइफ एंड आई सॉ कि वहाँ पर तो मेरी एग्रीगेट क्या, मेरे तो 20 मार्क्स भी नहीं आ रहे, एंड वो टाइम पे आई वाज सो लो कि मुझे चाहिए था कि मैं तो CA फाइनल कभी क्लियर कर ही नहीं सकती, बट देयर इज ऑलवेज सम मोटिवेशन जो आपको खुद ढूंढना पड़ता है, विच इज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आपने CA करनी ही क्यों थी? आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट CA, बट आप कोई भी एक चीज, कोई भी आप प्रोफेशन आप चूज करिए, कोई भी आप अपना एक गोल रखिए, आप जब उस गोल को परस्यू करें, देयर विल बी टाइम्स आपको लगेगा सब कुछ आपके वे से इधर उधर जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट इट टू गो, बट यू शुड बी मोटिवेटेड, यू नीड सम मोटिवेशन। किसी से बात करो, जैसे अब मेरा बेस्ट पॉइंट होता था, मैं अपनी मम्मी या पापा के पास जाके, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे से कुछ सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे से कुछ टाइम बात करो, या कुछ एक टाइम का ब्रेक लो, ब्रेक लेके दोबारा रीस्टार्ट करो। सो आई थिंक सभी ने 12th फेल देखी है यहाँ पे, तो नहीं गए हो? तो क्या उसके अंदर हमने मोटिवेशन देखी, रीस्टार्ट। You just have to restart your preparation. जो आपको रुकना नहीं है, फेलियर की वजह से कभी रुकना नहीं है। जैसे अभी आयुष सर ने बोला, fall 7 times, stand up 8 times. That should always be the mantra. Okay. And the other thing I said, confidence. अपने ऊपर बिलीफ रखो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। मैं वो सोचती ही नहीं कि मैं CA कर सकती हूँ अगर मेरे में कैपेबिलिटी नहीं होती कि मैं CA कर सकती। हमेशा हम अगर कुछ सोचते हैं कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, मैं ये पेंटिंग बना सकती हूँ, अगर मैं ये सोचती हूँ, मेरे दिल से आवाज़ आ जाए कि मैं ये पेंटिंग बना सकती हूँ, तो इन श्योरिटी मेरे में इतनी है कैपेबिलिटी कि मैं वो पेंटिंग बना सकती हूँ, अगर वो मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि मैं वो बना सकती हूँ। I just need some मेहनत, I just need some constant efforts. तो there are 3 important things जो आपको हमेशा याद रखनी है जब आप कोई भी चीज़ परस्यू कर रहे हैं, नॉट CA, नॉट योर प्रोफेशन, बट कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ की तरफ टारगेट कर रहे हैं, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, पर्पस, देयर शुड बी अ clear defined purpose for you, target,
12th क्लास के कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? ओके, सो बिजनेस स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट है गोल्स रिलेटेड, हाउ योर गोल्स शुड बी. गोल्स शुड बी स्मार्ट. व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड्स फॉर? अरे मुझे 7 years हो गए, आई रिमेम्बर इट. अभी पढ़ रहे हो आप लोग? ओके, चलो मैं याद करा रही हूँ. योर गोल्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलायबल, एंड टी फॉर टाइम बाउंड. सो आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे इतना बड़ा लॉन्ग टर्म गोल सोच के चलना है कि हाँ मेरे को तो सीए करनी है. इट माइट बी अभी आपके एग्जाम है, आई वॉन्ट टू टारगेट कि मेरे एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में इतने से ऊपर मार्क्स आ जाए. दिस इज माई स्मॉल टर्म टारगेट, बट वो टारगेट होना चाहिए. इट शुड बी मेजरेबल कि मैं इसको फ्यूचर में चेक कर सकूँ कि हाँ मैंने क्या ये अटेन कर लिया या नहीं. मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इट शुड बी अटेनेबल बाय मी. रिलायबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा में मैंने कुछ बना दिया कि हाँ कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता तो मैंने फिर भी डाल दिया कि हाँ नहीं मैं तो इंग्लिश में 100 लेके आऊँगा. मेरे को पता मेरी इंग्लिश की तो हालत ही 80 वाली भी नहीं है, मैं 100 का कैसे बोल कर. और टाइम बाउंड, अपने को हमेशा टाइम मैनेजमेंट में चलना है. एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना है कि मेरे को इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी है. सो आई होप सबको वो याद आ गया हो 12th क्लास स्टूडेंट्स कि गोल्स कैसे होने चाहिए. एक बार दोबारा बताओगे? एस फॉर एम, ए, आर, टी, करेक्ट, वेरी गुड. ओके, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट. अगर किसी बच्चे को छोटे होते से ही क्रिकेट खेलने का शौक है और वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहा है खेलने के और वो बहुत अच्छा खुद को इम्प्रूव डे बाय डे कर रहा है, आई थिंक वो पर्सन वुड बी मच बेटर दैन कोई एक पर्सन जो उस टैलेंट से बॉर्न हुआ है. यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स कि मैं क्या कल से अभी बेटर कर रही हूँ या नहीं. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड थर्ड, फेलियर इज नॉट द एंड. कभी भी फेलियर की वजह से रुकना नहीं है. इट विल ऑलवेज ओपन न्यू पाथ फॉर यू. आई विल कोट इट अगेन. फॉल 7 times, स्टैंड 8 times. सो जितनी बार गिरोगे इट्स नॉट नेसेसरी कि वही डायरेक्शन, बट अगर फेलियर से आपका कभी भी कोई एक पाथ पे रुकता नहीं है, उसकी वजह से इट माइट बी रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक लो एंड रीस्टार्ट योर होल प्रिपरेशन. और मे बी एक रास्ता रुक गया, दूसरा अपने आप ही खुल जाएगा. इट विल नेवर स्टॉप एनीथिंग. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, सो कमिंग ओवर टू सीए बनने के बाद, आई थिंक यहाँ पे सभी बच्चों ने ये बात सुनी है. 10th कर लो, आराम ही आराम है. 12th कर लो, आराम ही आराम है. अच्छा नहीं, इसके बाद ग्रेजुएशन कर लो, फिर आराम है. या फिर जॉब में आ जाओ, फिर आराम है. ट्रस्ट मी, मैं सीए बन गई हूँ, 1 साल जॉब को हो गया है, मुझे आराम नहीं मिला. So आराम should never be our end goal. One thing which I have learned, and I think अगर मुझे वो आराम मिल गया ना, मैं बोरिंग हो जाऊंगी. I will not strive. So आराम मिलने का मतलब ये हो गया that I'm not learning anything. So अगर मैं जॉब में हूँ, ठीक है, so मैंने कल एक काम किया, I want to know कि मैं क्या उस काम को कितना बेटर कर सकती हूँ. सो कल मैंने उस काम को XYZ टाइम लगाया. सपोजिंगली मुझे 10 मिनट लगे उस काम को करने के लिए. हाउ एफिशिएंट आई कैन डू दैट वर्क टुडे कि वो कल से भी बेटर हो जाए, या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए या मैं उसको इफेक्टिव वे में कर दूँ, कम टाइम में या कम गलतियों में. सो हाउ कैन आई इम्प्रूव जो मेरा पिछला वर्जन था
I'm not saying only about the job, but मैं आज क्या version हूँ और मैं कल क्या version थी. There should always be an improvement. There should always be something जो मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. जैसे आयुष सर ने अभी बोला, मैं हर रोज 2 या 3 टर्म्स नहीं सीख रही. मैं कल से आज क्या बेटर कर रही हूँ. So very different thing. मैं अभी actuarial science pursue कर रही हूँ. I don't think learning should ever stop. So मैं कुछ नई चीज़ पढ़ रही हूँ. मैं अपने काम के अंदर ऑटोमेशन लाने को सोच रही हूँ. और मे बी AI का जितना ट्रेंड है, मैं AI कंप्यूटर साइंस को सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लैंग्वेज कैसे सीखूँ कि मेरा काम इजी हो जाए. So you should always have the hunger कि मुझे क्या न्यू चीज़ सीखनी है, मैं इस चीज़ से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ या मैं क्या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ. सो आई थिंक एट द एंड विच आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रिमेंबर कि कभी भी आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. परफेक्शन इज नेवर द एंड गोल. यू शुड नेवर टारगेट कि मुझे परफेक्शन चाहिए. बट जो आपका गोल है, आपको ज़रूरी है कि आप उससे कितना कमिटेड हैं. दैट इज वॉट यू शुड हैव इन योर लाइफ. सो या आज का जो सेशन बहुत ही अच्छा रहा है. तीनों ने बहुत अच्छा कुछ बोला जो स्टूडेंट्स ने लर्न किया है. और आई थिंक सो सम स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग क्वेरीज व्हिच यू वुड लाइक टू आंसर. Any student who has any queries? Hello. Good morning, everyone. I'm Rakshit Gupta. And as I have told that I have met many CAs, but the biggest thing that I have strikes to my mind is like what was the biggest problem that you all faced, and I want to know how to overcome these problems. बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताया ना कि जो फाइनल स्टेज था वो वाले सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि 18 आवर्स 16 आवर्स आपको देने और उसमें टाइम मैनेजमेंट बनानी है आपको ईच सब्जेक्ट में. 4 सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको वो टाइम देना है उसके लिए. तो वो मेरी लाइफ के लिए सबसे टिपिकल टास्क था, उसको मैनेज करना, कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ और कैसे मैं डिसिप्लिन मैनेज से उसमें अपना ऑब्जेक्ट या अपना गोल मैं कंप्लीट कर सकता हूँ. तो मेरी लाइफ के लिए वही होते सबसे बड़ा टिपिकल था मैनेजमेंट. Good morning, ma'am. Good morning, sir. I am Om here, and I have a doubt related that how did you handle your stress? Like you study, you said that you study 18 hours. It is very difficult to do that. एक्चुअली मोटिवेट करने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है. कुछ लोग स्पिरिचुअल्स पे जाते हैं, कुछ मेडिटेशंस पे जाते हैं, और मेरा जो रहता था पिक्चर्स देखना. यू नो द नेवर से नेवर, कांटे किड्स है ना, भाग मिलकर भाग. तो आई विल वॉच एवर व्हेन आई फील स्ट्रेस, आई विल वॉच द मूवी, फील टोटली रिलैक्स मैटर. यार सबने स्ट्रगल करा लाइफ में. अगर मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल आ रहा है तो कोई एक एक्सेप्शनल नहीं है, हमें भी भागना ही पड़ेगा. क्योंकि भाग लेने से सबने स्टोरी देखी है जितना उन्होंने टफ स्ट्रगल सहा, क्योंकि उस टाइम में तो रिसोर्सेज थे नहीं, और विदाउट रिसोर्सेज उन्होंने इतनी स्ट्रगल करके अपने आप को इतना इंक्रीज किया. तो हम लोग आज के टाइम में कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं काम करने के. मेरा ये कहना है कि एक पिक्चर अच्छी सी कोई फेवरेट रखें, उसको चाहे 10 टाइम्स 20 टाइम्स जरूर बार बार रेपिटेटिव देखते रहें. उस पिक्चर में आप जरूर कुछ ना कुछ कंक्लूड करेंगे, है ना. जैसे नेवर से नेवर, आई विल फाइट फॉरएवर. तो ये थोड़ा इंस्पिरेशन दे देता था और उसमें माइंड आपको लगता. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Respected principal, ma'am. Respected management members.
Myself, Bhuvisha, I'm from class 11th, non-medical background. Well, your ma'am, sir, your speech was so moving and motivating that I also once thought to pursue CA as my career. Well, however, I do not have any question about your lifestyle, about your study schedule, thanks to your speech. But the question that I really want to ask is that what are the common myths about being a CA and what is the reality besides कि जैसे मैम ने कहा कि ये कर लो तो आराम ही आराम है. So what are the common myths that we the common people think that after CA कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो आपने सबसे बेस्ट पॉइंट अभी खुद ही बोल दिया. लोग सोचते हैं सीए कर लिया आराम ही आराम है. इट इज नॉट ऑलवेज द केस. कभी भी आप कोई चीज परस्यू करेंगे, कभी आपको आराम मिलेगा ही नहीं. तो एक मिथ और है, सीए बनते ही साथ यू विल गेट दैट. आपको कुछ और चीज चाहने की जरूरत ही नहीं है. यू आर ऑलरेडी ऑन द 7th लेवल कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है. दिस इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट आफ्टर यू फेस कि जैसे आप सीए बन गए. तो आई थिंक उसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक हम सभी लोग तो प्रैक्टिस में हैं आयुष सर और नमन सर. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रीड न्यू थिंग्स. आज क्या न्यू डेवलपमेंट आई है, आज एमएसएमई एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं, आज अच्छा इनकम टैक्स की एक न्यू रेगुलेशन आ गई है, उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ. सो सीए के बाद भी कभी भी लर्निंग खत्म नहीं होती है. सो दैट इज द बिगेस्ट मिथ आई वांट टू से. Thank you so much, ma'am. मिथ क्या होता है, मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा डर होता है आपका, यार बहुत डिफिकल्ट है. कई लोग आपको मिलेंगे डराएंगे, पर नो, डोंट गेट दिस थिंग्स. ये अपने दिमाग में मत घुसाएं. बी पॉजिटिव, बी काम, आप हर चीज में फील करते हैं. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Myself, Hetty, and I would like to ask a question. Can you please share your career highlight or a proud moment with us? Okay, so for me, the career moment, career highlight for me is being called to your own school to deliver mentoring session for all these children. So that has been my greatest highlight for my career. करियर हाईलाइट कभी भी एक हो ही नहीं सकता. व्हाट आई फील है, बिकॉज आपका करियर कभी एंड हुआ ही नहीं. बट अभी तक व्हाट हाईलाइट इज, जब मैं कॉन्वोकेशन पे था, आई वाज गेटिंग द डिग्री एंड आई सॉ माय पेरेंट्स स्टैंडिंग जस्ट लाइक हियर, एंड दैट टीयरी आईज ऑफ माय फादर, माय मदर, दैट इमोशनल मोमेंट, दैट सिंगल बिट, दैट इज द रियल हैप्पीनेस व्हिच आई फेल्ट during my career. But career अभी खत्म नहीं हुआ है. There are more and more to come. Never stop. कभी हमें रुकना नहीं है. अगर लाइफ में रुक जाओगे तो एडवेंचर ही खत्म हो जाएगा. You want your life to be monotonous. कि हाँ Monday, Tuesday, Wednesday, नहीं. You want to excel. कभी जैसे मैम ने कहा ना कि आराम नहीं है. 10th कर लो, 12th कर लो. तो अब हमारे लिए भी we are sitting here. हमारे लिए भी न्यू हाइट्स है, हमारे भी आगे के टारगेट्स है. सो इट इज नेवर कोई एक करियर मूवमेंट हमको आगे, यू हैव टू फॉलो. थैंक यू. Good morning. I'm Kaprita. So, like you said, that most of us don't have a proper plan in our mind. So I just want to ask, if we have a proper goal or plan in our mind, so how does this help us to move towards success? So, fixing a goal, ये बहुत एक पर्सनल डिसीजन होता है. आप किसी के कहने से, किसी के बोलने से आप कोई करियर चूज नहीं करते. ऑल एवरीवन इज, जो भी आपको दे रहे हैं वो एक गाइडेंस या एक एडवाइस देते हैं कि दिस यू कैन डू, आप इस लाइन में एक्सेल कर सकते हो,
आपके ये ट्रेड्स हैं, आप कंप्यूटर्स में जा सकते हो। तो गोल आपको खुद बनाना है, और खुद बनाया हुआ गोल ही आपको मोटिवेशन देता है कि आई हैव टू एक्सेल इट। मैम ने जब मैम ने आपको बताया, जब उन्होंने अपना डिलीवरी दी, तो उन्होंने यही कहा कि जो खुद हमने गोल फिक्स किया होता है वो ही हमें मोटिवेशन देता है कि दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड एंड आई हैव टू कंप्लीट इट। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये करियर ना आपको ना प्लस टू तक कुछ नहीं पता चलता। ये प्रैक्टिकल है कि हमको कुछ नहीं पता था। आपका सबसे पहले सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, तो आपके सामने कोई भी डिग्री आए ना, आप सबको पास आउट कर दोगे। तो आपको अपना इंटरेस्ट बिठाना है, और लाइफ में जब हर्डल्स आती है ना, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। डाउन टू अर्थ बने रहे, वो आपको अपने आप सक्सेस तक पहुंचाएगा। गॉड ऑफ Good morning, everyone. I'm Minazur. I want to ask you a question that what is the best advice you have received in your career? कोई एक सिंगल एडवाइस नहीं है जो मेरे को बहुत गाइडेंस मिली है मेरे मेंटोर से, टीचर से, पेरेंट्स से, एंड आई हैव शेयर्ड फ्यू। ओके, आई विल शेयर अनदर वन। ड्यूरिंग माय टाइम इन सीए फाइनल्स, taxation was a bit difficult subject for me. Easily वो क्रैक नहीं होता है। जैसे मैम ने भी कहा मॉक टेस्ट she went for and she failed in it. That is the same story of mine as well. तो करियर में एक मैं आपको एडवाइस जो मेरे को मिली थी which I am sharing, आपको जो टॉपिक जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको वो टॉपिक को बाइफिकेशन करके, if you cannot take this much jump, then take small steps. This is what I was told. मैंने what I did is, अरे यार संभाल लेंगे, कर लेंगे, टैक्सेशन का मॉक टेस्ट देने गए, फुल सिलेबस, ठीक है, एंड वो नहीं क्लियर कर पाए। Then what I did was I gave test of 3 chapters each at a time. तो अगर आप कहीं पे स्टक होते हो, आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल थिंग्स जो आप अचीव कर सको। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेंट नहीं होता है। ओके, थैंक यू। There's one more thing I want to add. एक तो consistent effort, which is indeed a good advice. इसके साथ एक चीज और है, कभी एक्सप्लोर करना बंद मत करना। So I was being told by someone कि ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। Always try कि कुछ नया चीज में सीखते रहो। That is the best advice I think. Additionally, which you should always be having. Be curious. Good morning, everyone. I am Devanshi, and I want to ask a question that what advice would you like to give to someone considering CA as a career? CA is a very nice profession. It is a very rewarding profession. So you must pursue CA if you have the confidence that yes, I can do CA. I want to do CA because I want to pursue it, not because some XYZ person has also achieved CAs or has become CA. It should come from your within that I want to pursue it. So yes. ऑल्सो उसके जो सब्जेक्ट है, अगर आप क्लास 11-12 में हैं तो मैथ्स और अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ आपको अगर इंट्रीग कर रही है, देन यू शुड ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। जो आप कह रहे हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सकते हैं, आपको वैकेंसी चाहिए। मैं आपको ऊपर के टॉप लेवल के रैंक बताता हूँ। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सकते हैं, आप सेक्रेटरियल में रोल भी ले सकते हैं, आप आर्बिट्रल डिस्प्यूट मैटर्स में जा सकते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक हैबिट पड़ गई 18-16 आवर्स स्टडी करने की, तो उसके लिए बस आपके पास क्या है कि आपको सिर्फ वही फॉलो करना है और आप उस टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत बिग रोल प्ले करते हैं लाइफ के अंदर। जज बन सकते हैं आप, कई चीज जज भी हैं आज के टाइम में। तो ये आवर प्रोफेशन इज वेरी प्राइडफुल।
Can we give the mic there? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Myself, Nisha, and I also wanted to become a chartered accountant. My question for you is, how can I stay engaged and motivated in my career? मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो मैंने अभी बताया भी कि फीचर्स दे सकते हैं हम आराम से, है ना। जैसे लक्ष्य एक अगर पीछे देखो ऋतिक रोशन की, कि जब उसको रिग्रेट फील हुआ अपनी लाइफ में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, देन ही टेक अ टास्क, उसको मिलिट्री में जाना और वहाँ पे आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसको एक टास्क मिला और उस टास्क के अंदर उसको चट्टान पे चढ़ना था जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। पूरी टीम ने उसका साथ बाद में दिया, पहले तो सबने पीछे हटे, लेकिन तो दिस वाज द मोटिवेशन कि जब तक आपको लगे ना कि यार मुझे वो टास्क अचीव करना है, तभी आप अचीव कर पाओगे। तो आप अपना गोल बनाएं और अपने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनाएं। और मोटिवेशन के लिए मैं तो कहूंगा कई लोग स्पिरिचुअल या मेडिटेशन करते हैं या पिक्चर्स देखते हैं। तो आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट सेल्फ मोटिवेट करने के लिए ये सबसे अच्छी है। Good morning to all students and I am Akshata, and I really want to ask you a question, which I guess everyone will want to ask you. What advice would you give us to achieve success in our chosen fields? For success, you already have a goal decided with you. So be consistent with your research. That is the core advice you should be taking for yourself. That मुझे ये करना है, मेरे को करना है, मेरे पास एंड गोल है, पर मैं ये प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूँगी कि मैं इसको कल कर लूँगी। मुझे आज करना है, बी कंसिस्टेंट, छोटे छोटे स्टेप्स लो और उसको अचीव करो। So गोल अचीव करने के लिए you have to be self-motivated, second dedication and third discipline, जो हम सब ने फॉलो किया and we cracked the course. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good morning everyone, myself Vivansh. और जैसे कि हम कहते हैं कि सीए का एक टैग लगता है नेम के आगे, तो मुझे भी वही लगाना है कि उसकी बहुत चुत है ज़्यादा। तो और अदर अपॉर्चुनिटीज क्या है सीए बनने के बाद, और हम उसे ग्रैब कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे नमन सर ने बताया, you can also go for UPSC. So we were being told in our one of those after CA classes कि आप UPSC के एग्जाम्स हमने बाय चांस ऐसी शीट देखी, कुछ एग्जाम्स हमने देखे, दे वर सो इजी फॉर अस कि 11th-12th का कॉमर्स का बच्चा भी उसको कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी इजी, बट वन ऑफ द सब्जेक्ट वाज वेरी इजी। UPSC इज ऑल्सो ऑप्शन। सो अगर आपने सुना हो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, देयर आर मेनी फील्ड्स, क्लाइमेट चेंज की रिपोर्टिंग, ये भी सीए बनने के बाद एक सीए की सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है इन सब डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, दे एमिट वेस्ट को कैसे रिसाइकल हुआ है, इस चीज़ की रिपोर्टिंग भी होती है, टैक्सेशन की भी होती है। सो ये सारे बहुत वाइड ऑप्शन है। सीए इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू जो हमने पढ़ के आए हैं कि बस जीएसटी कर देंगे या इनकम टैक्स कर देंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं सीए, क्योंकि सीए बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए रिपोर्ट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन एक्सप्लोर आफ्टर सीए। आपको सबसे पहले तो टैक्स प्लानिंग तरह की चीजें करनी आ जाती हैं, एक्विजिशन मर्जर का एक अलग से कंसेप्ट चल रहा है आजकल, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है आपको लोगों के सीक्रेट चल जाते हैं पता क्योंकि आपको फाइनेंस में ऑलरेडी आपको सब शो करेंगे। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मर्जर एक्विजिशन, ऑडिटिंग, एश्योरेंस, बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, आप किसी भी मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं, क्योंकि हर कैरियर बनने के बाद भी कैटेगरीज होती है। आप चाहे डॉक्टर बने या सीए बने या कुछ भी अगर नेक्स्ट परस्यू करें कोई भी कोर्स, उसमें बहुत वैराइटीज है।
तो आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करना और एक अपना एस्पिरेंट गोल बनाना है उसका। जिससे हम सब डीयू को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि डीयू में जाना है, डीयू में जाना है, तो आप टॉप कॉलेजेस रिकमेंड कर सकते हैं? डीयू के जो टॉप कॉलेजेस है, आप नॉर्थ कैंपस में फोकस करो सबसे पहले, ठीक है। तो उसमें जो अब कट ऑफ, अब तो CUET इज देयर, है ना, CUET इज देयर, आपको क्रैक करना होता है एंड आपकी फिर उसमें लिस्टिंग आती है। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर आपके किरोड़ीमल आ गया, SRCC आ गया, एक हिंदू कॉलेज भी है गर्ल्स का, एंड रामजस है, सेंट स्टीफन भी है फॉर इकोनॉमिक्स, इफ यू आर गोइंग टू परस्यू इकोनॉमिक ऑनर्स एंड आपको उस साइड जाना है तो सेंट स्टीफन भी है। There are plenty of 7 to 8 colleges of North Campus too. They are the best in if you are going to pursue, मतलब अगर आप DU टारगेट कर रहे हो तो आपको वो टॉप 7 कॉलेजेस टारगेट करना है। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Myself, Rashmi. I would like to ask question that can a non-commerce student also pursue CA? Yes, absolutely. I think you can pursue it. This is dedication important, but my colleagues say कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए 10 काम के प्रति। कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, आपको उसमें इंटरेस्ट पहले क्रिएट हो गया ना एक बार, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। I think I just read somewhere that a nurse has just become a CA, if you read it in the newspaper. So irrespective of certain streams that you have, you can pursue. Thank you. It's been a very insightful session, and I'm sure all the students would gain something out of it. Now I request Manager Sir Radeshan, Namit Jain Sir, Principal Ma'am, to felicitate the Reverend Subject Experts for the moment. Hi guys, a very good morning still because it's not noon. Once again, a very good morning. See, you could have made it more interesting, asking a lot of kind of questions which you should have asked. You have asked very stressful questions. आपका प्राउड मूवमेंट क्या है? आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? हम और करियर में क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, राइट? सर, क्या आप सुबह 5 बजे उठ के भागते थे क्या? आयुष सर, नहीं भागते थे? तो बिना भागे सीए बन सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। आपको पैटर्न्स आते हैं क्या रिद्धिमा मैम? पैटर्न्स जिसको नहीं आते वो भी सीए बन सकता है, राइट? क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए। और आयुष सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, इन दिस सेशन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, पीपल हु वर सिटिंग एट द बैक, दे आस्क मोर क्वेश्चंस। You are mysterious in your time, but here we have toppers who are sitting at the back, and people who are sitting at the front, they are not asking any questions, right? See, there are few bottom lines, there are few set marks, and very importantly, these young generation, I have learned a lot from this side, and of course from this side. And the teachers who are standing out here, a very good applause for you guys, because I'm so happy and I'm so impressed when Riddhima said to a question that the proud moment for me is sitting here in this school with you guys, with the teachers. That is the most proud moment. So the most important thing is in your life whom you do not forget and also whom we take very lightly. Number one, कौन है जिनको आप सबसे lightly लेते हो? आप बताओ, कौन है आपके घर में जिसको आप सबसे लाइटली लेते हो? मम्मा। मम्मा को हम सबसे लाइटली लेते हैं। और स्कूल में किसको लाइटली लेते हैं? टीचर्स को। और आज आयुष ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला कि आप अपना जो सक्सेस है वो सबके साथ शेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर करना चाहो। कोई आता है रोड से, वो बोलता है अरे मैंने आपको वो सजेशन दिया था, याद है आपको? अब आप सीए बन गए। अभी आयुष सोचता है कि अरे कौन था ये, कभी मेरे को सलाह दिया, अच्छा किसी मैरिज पे गया था तो मुझे सजेशन दिया था, राइट? लेकिन
उन्होंने साथ ही बोला कि आपका फेलियर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। यस, फेलियर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन उस फेलियर के पीछे 2-3 लोग हमेशा होते हैं। एक आपका वो सिबलिंग, आपका ब्रदर या सिस्टर जो 24 घंटे आपको नैगिंग करता रहता है, हमेशा वो आपके पीछे होता है। दूसरे आपके पेरेंट्स, वो हमेशा पीछे होते हैं, चुपचाप शांत। और उसके बाद टीचर्स। देखो 3 इडियट का एग्जाम्पल दिया था, उसमें माधवन ने एक बात बोली थी कि जब अपने नंबर कम आते हैं तो दुख कम होता है, दुख ज्यादा कम होता है। जब दोस्त के नंबर ज्यादा आते हैं तब ज्यादा दुख होता है। तो किसी ने पूछा कि मेरा मोटिवेशन क्या हो सकता है, तो मेरा मोटिवेशन वो दोस्त भी हो सकता है कि एक बार तो इसको पीछे छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। राइट? आप सुन रहे हो, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं या आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो? हाँ, आपकी सब बात कर रहा हूं, कर देंगे। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? मैम है यहाँ पे? मैम तो आपके नंबर कम आते हैं इससे या ज्यादा आते हैं? ज्यादा आते हैं। तो तुम्हें गुस्सा आता है इसके ऊपर? तुम्हारी स्माइल ही बता रही है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है जब उसके नंबर ज्यादा आते हैं। क्या बनना चाहते हो आप मैम? सीए? तो क्या सीए की क्लास चल रही है? कल को हम किसी कर्नल को लेके आएंगे तो हम कर्नल बनेंगे। तो आपको क्या बनना है? मैम तो सीए बन रहा है, उसको कुछ नहीं बनना है, बट फिर भी वो आपको हराएगा किसी दिन भी। उसकी नजर आप लोगों से सबसे पहले बोला मैम। राइट? प्लीज हैव अ सीट। बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताई है। उसमें एक जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, उन्होंने बोला कि 16-18 घंटे की स्टडी। और एक चीज आपको मैं और भी बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग पीछे बैठ के मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, हम चाहते तो खाली रिधिमा को बुला सकते थे, हम चाहते तो खाली नमन सर को बुला सकते थे, स्कूल चाहता तो शायद खाली आयुष को भी बुला सकता था। Can anyone tell me why there are 3 CA sitting in this room, in this auditorium? Rather we asked for 4, but that 4th guy, he could not get it because he is working in a company, so he had last minute meetings, so that is why he was not there. So can someone tell me, can think of why there are 3 CAs? Why not 1? Can someone pass on the mic, please? So, is my question clear? Why there are 3 CAs, why not 1? Or rather, why 4? I expected 5 because one of my management member, he is also CA. He is also a young guy. And we have not called anyone who has got white hair or grey hair. You can see they all are very young, isn't it? Aren't they? Yes or no? Yes, sir. You guys do not say yes. You guys do not say no. I don't know what's wrong with you guys. Yes, ma'am. Good morning, sir. Yes, ma'am. I guess each of them has their own stories, and I guess every one of us could gain some experience from them, can have some advice from each of them because of their different stories, and I guess that's so do you think that we should teach you 3 stories at the same time? It's not that. I guess each of them has their experience, and the stories that they told us, maybe we are also facing those difficult things that they told us, which they were facing in their 10th, 11th. So do you find each of them has a different journey altogether? Yes, yes, please. Do you think each one of them has got different journey? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. I don't think so. Everyone had same journey. What is the final output of this journey? They all are CAs, right? They all are CAs. So their journey is same. Ayush said discipline, right? Naman sir said discipline. Ridhima said discipline. They said time management.
They said parent is important, right? They said same things. The only thing which was different was their experiences, the way they handle their pressure. And bringing 3 CAs together in one go is basically to tell you, डरने की जरूरत नहीं है. It's not one individual who cracks it. There are many who can crack it. और तीनों की जर्नी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता. और मेरे को रिद्धिमा आज आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई है, हम सबको इनफैक्ट अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो वो चीज ये है कि टैलेंट के साथ अगर आप बॉर्न हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपने कैसे कल्टीवेट किया है अपने डिसिप्लिन, अपने एफर्ट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक वही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है. यहां से जब आप अपने इस रूम से बाहर निकलेंगे, वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप हर रोज, एंड इट इज एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो. आई एम 50 plus, but I still have to feel that learning is not over. I'm still supposed to learn. That is why I was sitting and I was learning from this young generation and from you as well. That don't ask questions. I'm happy, isn't it? मैं खुश हूँ. मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना. मुझे दुनिया की हर बात पता है, राइट? कल कौन सी स्टेट के इलेक्शन आए, फिनिश हुए, देखा? जानने की जरूरत ही नहीं है कल कौन से स्टेट में क्या हुआ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यस, बिहार के वो तो आप मम्मी से, आप मम्मी को आप लाइटली ले रहे हो, स्कूल में आप टीचर्स को लाइटली ले रहे हो. आई एम श्योर आप अपने प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत लाइटली ले रहे हो, राइट? किसी को मालूम है कि हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट कौन है? कौन है? बहुत अच्छी बात है. सबसे पहले तो ये सीखना बड़ा जरूरी है कि बहुत रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए. शी इज आवर प्रेसिडेंट. हाँ, कुछ श्रीमती लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो कितना भी अच्छे आप क्वालिफाइड हो जाओ, नमन सर की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं पता वो पीछे तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी. वो ये उन्होंने बोला, डाउन टू अर्थ रहो, ग्राउंडेड रहो. ग्राउंडेड का मतलब लिटरली ग्राउंडेड नहीं है, पर ग्राउंडेड का मतलब ये है कि मैंने अचीव कर लिया, उसको यहाँ पे मत ले जाओ. और उसके पीछे पीछे आयुष सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आप जिस दिन ये सोच लेते हो ना, ये मेरी लाइफ का टॉप मूवमेंट है, राइट? उसके बाद वहां से हम फिर एक डिक्लाइन पीरियड में जाते हैं कि अचीव कर लिया मैंने, एक टारगेट अचीव हुआ है, नेक्स्ट बनाइएगा, 3rd, 4th, 5th, 6th. तो रुकने का नहीं है. ये इंपॉर्टेंट चीज सीख के जा रहे हैं जब अपने स्कूल में, कि नहीं जा रहे हैं? तो कुछ अभी क्वेश्चंस आए हैं दिमाग में या साफ है सब? है कुछ क्वेश्चंस दिमाग में? कुछ क्वेश्चन है दिमाग में मैम? You have some question in mind? Okay, ask. What is the question you have in your mind? पूछो ना. कोई क्वेश्चन कभी बेकार नहीं होता, ये याद रखना. पूछो. नहीं? Ridhima ma'am, I tried to follow what you said. Have confidence in you. तो जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ अचीव नहीं कर सकते. कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स. और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो वो जाके करिएगा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. Thank you sir for enlightening that atmosphere which was quite stressful, because it was the first time children maybe they didn't know what to ask, and now we can felicitate later on. First, Ritu ma'am would like to say a few words. In today's CA meet, we have the privilege of interacting with distinguished chartered accountants who inspired our students through their journey. Among the distinguished chartered accountants joining us the meet, 2 names are very close to me, Naman and Riddhima. I had the privilege of today teaching them and seeing them as an accomplished CA is proud moment not just for me but for our institution. And Riddhima says, "Aram kabhi nahi hota." I do. You know who motivate me? मैं आज भी बहुत कुछ सीखती हूँ.
My students motivate me. मेरे students आगे फर्दर कुछ कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर्स में बहुत कुछ अच्छा कोर्स आता है. I love to do this. उनको आता है, मैं भी सीखूंगी. मोटिवेशन जितनी मुझे अपने स्टूडेंट्स से मिली, आई थिंक मुझे नहीं मिली तभी. आज मुझे लगता है कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो सबसे पहले अगर मैं सीखती हूँ वहाँ से, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑप्शन है कि मैंने खुद ट्राई करना उस चीज़ को. एंड रिद्धिमा एंड नमन, आई एम वेरी हैप्पी आपको यहाँ देखकर. इट्स ट्रू, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की आपकी जर्नी बहुत अच्छी है. Your journey reflects your dedication, your discipline, and a strong achievement inspire each student present here to dream higher and work hard. My heartfelt blessings to Ayush, Naman, and Riddhima, with a future filled with success, growth, and continuous countless milestones. Blessings to you. एक्चुअली हम हर किसी से सीखते हैं. आज भी ये 3 हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, तब भी हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है. We have learned that even if we fail 7 times, try get up 8 times. Now I would request Principal Ma'am to deliver vote of thanks. A very good morning to our revered management members, our guest speakers and students, of course, needless to say, my staff members as well. Today I have the privilege of expressing gratitude on behalf of all the students whose journeys have been shaped, strengthened and inspired by the remarkable chartered accountants who stand with us as mentors. A huge round of applause for all of you. To all the distinguished CAs present here, thank you. Thank you for taking time out of your demanding schedules to guide us, teach us and prepare us for the challenging yet rewarding path of the chartered accountancy profession. Your mentorship goes far beyond academic instruction. You have not only clarified doubts, but you have also shared something far more valuable, your personal experiences. The insights you offered from your own journeys, the real life challenges you overcame, the lessons you learned, and the wisdom you gained. These are gifts that no textbook can provide. Isn't it true? Like this is some of the learnings which we get first hand. We got first hand from them, from what they told you, and of course they've mentioned that consistency is the key to success. Whatever little efforts you put your children, they are going to yield successful results later. So work hard tomorrow and you'll reap the results. Has given us confidence and your encouragement has given us hope. Hope that we have more CAs in this and more CAs who are going to give sessions tomorrow. We deeply appreciate the patience you showed, the time you invested and the genuine care you expressed for our growth. Every piece of advice and every word of motivation has left a lasting impact. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Like he said, now we would facilitate request Ritesh sir, Namajan sir, to please present their mentor. Start with the table first. Okay, Riddhima ma'am. Naman sir.
I would request manager sir, manager sir, principal ma'am and regular guests to please proceed to management room for the training, and all the independent teachers as well as the students would move towards library. Students of this set level, please be seated for a moment. One by one, please be seated in the classroom. Students of Vijayawada, please, you can move. Critics, you can please guide them to go to the library. Take them.